Welcome back to students of class 7th. Now we are heading towards the chapter 4. Okay, the name is The Voice of a Conscience. It is the story by Munshi Premchand. Okay, and now he is showing us the difference, how he is justifying the voice of the conscience. It is the story of the two friends who were once became the head of the panchayat and how they had taken the decision. Okay, now let's begin. First part is let's begin. In the let's begin section, you can see there are two pictures given. If you were present in both the situations above, how would you react? Would your conscience allow you to accept the wrong act because he is your friend? In the first picture, you can see the two boys are doing the act of cheating. Okay, they are answering the answer sheets or they are answering the exams, writing the answers in answer sheets, copying with the other person. In the second one, you can see there are two friends. One is the pickpocket and another one is observing him. So, what will be your decision or what will be your reaction when you see both the wrong acts happening? So, same is the theme of our story. Let's read. Now read the story that revolves around the enduring bond of friendship between Zumman Sheikh and Algu Chaudhary. There are two friends, Zumman Sheikh and Algu Chaudhary. It is through the two friends that the author Munshi Premchand shows the judgment and impartiality of the existing rural administrative and judicial system. Okay, by these two are the characters of the story, and by these two characters, these two friends, the author Munshi Premchand has tried us to show the act of judgment and impartiality of the existing rural administrative and judicial system known as पंचायत. जो पंचायत का न्याय करने का तरीका था निष्पक्ष, ओके, वो वाला हमको इसमें शो किया गया है इस स्टोरी के थ्रू. So let's read the story, The Voice of a Conscience. Zumman Sheikh and Algu Chaudhary had been close friends from their childhood. The two were inseparable and lived close to each other in the same village. Their friendship was founded on a common outlook and a deep trust in each other. Neither any discord nor any rancor ever blemished their friendship. Zumman assigned the responsibility of looking after his house and family to Alagu whenever he traveled. And there were two friends. Who are the two friends? Zuman Sheikh and Algu Chaudhary, and they are the childhood friends. बचपन के दोस्त थे. They two were inseparable. उनको अलग करना बिल्कुल मुश्किल था और वो गांव में एक दूसरे के आसपास ही रहते थे. Their friendship was founded on a common outlook. Their friendship started with a common outlook. एक बचपन जैसे बचपन के दोस्त हमें मिलते हैं स्कूल जाते समय या साथ खेलते समय, वैसे ही उनकी भी मित्रता शुरू हुई थी. पर उनका रीजन क्या था कि उनको एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास था. Neither any discord नॉर एनी रैंक, और वो हमेशा एक दूसरे की बात से सहमत होते थे और दिल में एक दूसरे के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखते थे. एवर ब्लेमिश्ड देयर फ्रेंडशिप, इससे कभी उनके रिश्ते में दरार नहीं आई. जुम्मन असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हाउस, और जब कभी जुम्मन बाहर जाता था तो उसकी फैमिली की जिम्मेदारी वो अलगू को सौंप के जाता था. अलगू डिड द सेम व्हेन रिक्वायर्ड, और सेम जब अलगू बाहर जाता था तो वो अपनी जिम्मेदारी जुम्मन को सौंप के जाता था. जुम्मन वॉज डीपली रिलीजियस मुस्लिम वाइल अलगू वॉज अ डिवाउट हिंदू. जुम्मन मुस्लिम था और जो अलगू था वो डिवाउट मीन्स जो मूर्ति पूजा करते हैं उस तरह का एक हिंदू था. इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफरेंसेस इन देयर कल्चर, festivals and food habits, they still remain fast friends as their thoughts were similar. The villagers admired the friendship between the two and loved them for it. तो जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो गांव में भी बहुत पॉपुलर थी. द टू हैड देयर बेसिक एजुकेशन अंडर द ट्यूटलेज ऑफ जुम्मन्स फादर. उन दोनों की एजुकेशन किसके अंडर हुई थी? जुम्मन के फादर के इंस्ट्रक्शंस के अंडर. जुम्मन ग्रू अप एंड बिकेम अ डिपेंडेबल राइटर ऑफ डीड्स एंड एग्रीमेंट्स. हुंडी चिट्ठी या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो लिखते हैं ना, तो जुम्मन बड़े होकर वो बना. ओके, द विलेजर्स ट्रीटेड हिम विद रिगार्ड फॉर दिस, और इसी वजह से जो विलेजर्स थे उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे. Alagu didn't quite lose his influence in the village. He was affluent and that got him the prestige and respect before the villagers. अब क्या हुआ, जुम्मन तो इसलिए पॉपुलर था क्योंकि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स और डीड्स लिखता था, पर और इसी वजह से विलेजर्स उसको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे. पर जो अलगू था वो भी बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, इसलिए वो भी काफ़ी पॉपुलर था और उसकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत थी. ऑल वेंट स्मूथली अंडर देयर अरोज अ डिस्प्यूट बिटवीन जुम्मन एंड हिज खाला.
जुम्मन हैड एन ओल्ड लोनली aunt with no one in her family. ओके, अब जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि जुम्मन और उसकी आंटी के बीच में एक फाइट नहीं हुई, जब तक एक लड़ाई नहीं हुई उन दोनों के बीच में, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था. शी वॉज लकी टू हैव सम प्रॉपर्टी इन हर नेम. जुम्मन हैड एन जुम्मन हैड एन लोनली आंट. जुम्मन की एक आंटी थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी और उनके परिवार में कोई नहीं था. पर ये लक की बात थी कि उनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी. फॉर हर अपकीप इन हर ओल्ड एज शी ऑफर टू बिक्विथ हर लैंड टू जुम्मन इन एक्सचेंज ऑफ फूड एंड शेल्टर अंटिल हर डेस्माइस. अब क्या हुआ कि उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, उसकी वजह से ये तो पॉसिबल था कि उनका जो फ्यूचर था वो सेफ था, या उनका जो ओल्ड एज था वो आराम से निकल सकता था. तो अब क्या हुआ, फॉर हर अपकीप इन हर ओल्ड एज, वो चाहती थी कि बुढ़ापे में जुम्मन उनकी देखभाल करे, और इसके लिए उन्होंने ऑफर किया कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को दे देती हैं, और जुम्मन उसके बदले में उन्हें रहने के लिए जगह और खाना देगा. अंटिल हर डिमाइस, मतलब उनके गुजर जाने तक या उनकी डेथ तक. जुम्मन अग्रीड एंड द डील वॉज स्ट्रक. जुम्मन इस बात पे सहमत हुआ और उनके बीच में एक डील हो जाती है. द ओल्ड आंट मूव टू जुम्मन हाउस वेयर शी वॉज एक्सेप्टेड विद वार्मथ एंड वेलकम. जो उसकी आंटी थी उसको उनके घर में वेलकम किया जाता है और बहुत अच्छे से वो लोग उनको रखते हैं. शी होप दैट शी कुड लिव एंड डाई विद डिग्निटी एंड लव इन द फोस्टर होम. उन्हें भी लगने लगा था कि ये लोग मेरे अपने हैं, इसलिए बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर रह भी पाऊंगी और मेरी डेथ भी अच्छे से होगी, मतलब मुझे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिल जाएगी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोस्टर मीन्स उनका पैतृक घर जो था वहाँ पर. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडी फेल ऑन जुम्मन्स वाइफ करीमन. अब क्या हुआ कि जुम्मन को रखने की, जो जुम्मन की आंट की जो रखने की जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर आ गई, जुम्मन की वाइफ जो थी करीमन, उनके ऊपर. आई वंडर how long I have to look after this old woman. She has given us a little amount of money and now she behaves as she owns us. वो क्या कहती हैं कि मुझे तो ताज्जुब होता है, मुझे कब तक इनको रखना पड़ेगा और कब तक इनकी देखभाल करनी पड़ेगी. इसके बदले में इन्होंने जो हमें रकम दी है वो तो बहुत थोड़ी है. करीमन मेड इट अ पॉइंट टू स्पीक लाउडली सो दैट शी कुड बी हर्ड बाय द ओल्ड वुमन. और करीमन ये बहुत जोर से बोलती है ताकि वो जो ओल्ड लेडी थी, जुम्मन की जो आंटी थी, वो करीमन की बात को समझ सके. एट टाइम्स द आंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट. अब क्या हुआ, उनके साथ घर में बुरा व्यवहार होने लगा और टाइम टाइम पे वो इसका इसका मतलब इसके अगेंस्ट भी जाती रही, या इसका इसका द्रोह भी करती रही, या इसके खिलाफ आवाज भी उठाती रही. बट शी कुड डू लिटिल टू मेक द यंग लेडी मैंड हर मैनर्स. पर वो नहीं चाह कर भी या बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाई कि जो जुम्मन की वाइफ थी करीमन, वो थोड़ा अपने बर्ताव में सुधार ला सके. मैंड हर मैनर्स. Even the frugal meals she ate were hard to come by. मतलब थोड़ा बहुत जो खाना खाती थी वो भी उनको बहुत मुश्किल से दिया जाता था. When the Khalajan could no longer endure this humiliation, she decided to live separately and asked for a small allowance from Jumman. अब क्या हुआ, जब खालाजान थी वो अपना अपमान और नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जुम्मन से अलग होकर रहेंगी और जुम्मन से कहा कि जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी उसके बदले तुम छोटा मोटा पैसा मुझे मुआवजे के रूप में दे दिया करो, सो दैट शी कुड कुक हर ओन मील्स. इसके बदले वो अपना खाना खुद बना सकें. Zumman was furious. Why should I give you a monthly allowance? Do I not feed you and clothe you and look after your needs? अब जुम्मन क्या हुआ, जुम्मन ने क्लियरली उनसे जवाब दिया. वो थोड़ा घबरा भी गया. उसने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दूं मंथली अलाउंस, महीने का हर्जाना क्यों दूं? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला रहा हूँ, या तुम्हें कपड़े नहीं लेकर दे रहा, या तुम्हें रहने को जगह नहीं दे रहा? यू वॉन्ट टू ह्यूमिलेट अस इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी. आप शायद समाज के आगे हमारा अपमान करना चाहती हैं. ऐसा जुम्मन ने उनसे कहा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट यू विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.